Hello everyone, welcome to Education Hub. So guys, today we are going to continue our fourth chapter from class 12th biology, which is the reproductive health. So guys, we have already done a few topics previously, and I have also posted the videos of the same topics on my channel. So please, if you have not watched those videos, just go and check out on my channel. So guys, today the topic we are going to start is STD, right? So basically this is a very important topic from the chapter. So we will be discussing them in details. Okay, so let's begin with today's video. Basically guys, we are going to start from STDs. Okay, so basically what are the STDs? It's a very general question but the complex one also, right? So अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि STDs क्या है, so basically STDs sexually transmitted disease को बोलते हैं, यानी कि ऐसे डिजीज जो बेसिकली सेक्सुअल कांटेक्ट से दो पर्सन के बीच में स्प्रेड होती है, राइट? So if we talk about the definition of STDs, so basically these are the diseases that are generally passed from one person to another during the sexual intercourse. यानी कि दो पर्सन से के बीच बेसिकली ये डिजीज तब फैलती है when they are in sexual contact with each other, यानी कि ये सिर्फ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलती है एंड बेसिकली इट इज़ नॉट गोइंग टू स्प्रेड फ्रॉम टचिंग और गेटिंग स्नीजिंग और हैविंग कफिंग और कोल्ड, राइट? सो वी कैन से दिस इज द सेक्सुअल कंटिन्यूमेटेड डिजीज. ओके, सो बेसिकली हम STDs को वर्नियल डिजीजेस VDS भी बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं इनको रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन RTIS, राइट? And what is the protection for these diseases? Basically simple protection है, just to avoid unprotected sexual intercourse. What does this mean? इसका मतलब ये है कि अभी तक इनकी कोई प्रॉपर मेडिसिन नहीं डेवलप हुई है STDs की. सो एक बहुत ही सिंपल, यू कैन से बहुत ही सिंपल एंड फोकस करने वाला जो प्रिवेंशन है वो ये है कि यू हैव टू जस्ट अवॉइड अनप्रोटेक्टेड सेक्स, राइट? सो इसका मतलब ये है कि अगर कोई दो पर्सन है एंड वन पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम STDs, सो वी शुड नॉट बी केयरलेस, राइट? एंड वी शुड बी यूजिंग द प्रोटेक्शन measures while being in sexual contact. So if we talk about the example of these STDs, so very basic example is AIDS, right? AIDS is a very general example, and this disease is increasing just day by day all over the world, right? And this is one of the diseases which doesn't have any medical treatment, right? And basically AIDS जो होता है वो हमारा HIV वायरस से स्प्रेड होता है, राइट? HIV वायरस से स्प्रेड होता है एंड इन दिस डिजीज बेसिकली मैनी सब डिजीजेस आर जस्ट अटैकिंग ऑन द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एड्स. यानी कि इस एड्स जो ये एड्स डिजीज़ है, बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब ये पर्सन अगर किसी HIV वायरस या फिर एड्स से सफ़र कर रहा है, सो बेसिकली उस पर्सन के बहुत सारी डिजीज़ेस हो जाती हैं, मल्टीपल डिजीज़ से वो सफ़र करने लगता है, जिससे कि उसके बहुत सारे ऑर्गन्स इफेक्ट होने लगते हैं. फिर एक टाइम पीरियड ऐसा आता है बेसिकली कि जब उस पर्सन की इम्यूनिटी कम हो जाती है, डेड हो जाती है, उसके ऑर्गन फेलियर होने के चांसेस हो जाते हैं, ब्रेन डेड हो जाता है पर्सन. सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी डेंजरस डिजीज़. बहुत ही सैड है कि इतना डेवलपमेंट होने के बाद, इतने साइंटिफिक प्रोग्रेस होने के बाद भी even at the date of present time we don't have any medical treatment for AIDS and HIV. So we should not be very careless regarding any of the things related to these STDs.
राइट। और एग्जाम्पल देखें तो जेनिटल वार्ड्स होता है एक डिजीज विच इज ऑल्सो STD. Hepatitis V infection is also an STD, right? Genital herpes is one of the STDs. So there are many kind of STDs from which a person can get suffer due to unprotected sexual contact, right? So basically जो एक अगर हम एवरेज देखें कि कितने एज के पीपल को सफ़र करता है या अफेक्ट करता है जनरली, सो एज ग्रुप फ्रॉम 15 to 24 years. इसका मेन रीज़न ये भी हो सकता है कि एट दिस एज ग्रुप people are unaware about those sexual protection, or you can say about the STDs, or the use of contraceptive methods, the use of barrier methods. People are unaware. So basically one of the reason can be this one also for the increasing rate of STDs, right? अब हम सिम्टम्स की बात करें कि एक कॉमन सिम्टम्स क्या हो सकते हैं इन सब जो मैंने एग्जांपल्स आपको STDs के बताया. सो व्हाट आर द जस्ट सिंपल एंड अर्ली सिम्टम्स ऑफ दीज STDs, राइट? सो इस जो बेसिक होता है उसमें ये होता है कि पर्सन को ईचिंग होने लगती है, खुजली होने लगती है, फ्लूइड डिस्चार्ज होने लगता है, एक्सेस अमाउंट में फ्लूइड डिस्चार्ज होता है उसके जेनिटल ट्रैक्ट से, यानी कि प्राइवेट पार्ट से. स्लाइटली पेन भी होने लगता है उसको. पेन बॉडी के सारे पार्ट्स में भी होता है, बट बेसिकली इट इज़ इन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स लाइक पेनिस एंड वेजाइना. ओके, सो स्वेलिंग भी होने लगती है, राइट? एंड जितना भी मैंने बताया है, ईचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, पेन एंड स्वेलिंग, ये आपका जेनिटल रीजन यानी कि प्राइवेट एरिया में ही होगा. बेसिक रीज़न ये, आपके और बॉडी में भी ये सिम्टम देख सकते हैं, बट अगर आपके ये सारे सिम्टम्स आपके जेनिटल रीजन में दिख रहे हैं, सो दिस कैन बी योर STD सिम्टम्स, राइट? एंड बेसिक जो होता है सिम्टम्स मेल एंड फीमेल्स में दोनों के सेम ही रहते हैं, राइट? बट एक्चुअली इन फीमेल्स दीज आर एसिम्टोमेटिक, यानी कि इनमें जो फीमेल्स STD से सफ़र कर रही होती हैं, बहुत कम फीमेल्स होती हैं जिनमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं. सो हियर आई मीन कि जो फीमेल्स होती हैं उनमें सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, और इस रीज़न की वजह से ये STDs का डिटेक्शन नहीं हो पाता है, वो उनका एनालिसिस नहीं हो पाता है कि दैट्स द फ्रेंड सिटिंग वुमन इज सफरिंग फ्रॉम STD, राइट? सो एक ये भी बहुत डेंजरस है कि सिम्टम नहीं देखने की वजह से हमें पता नहीं चलता है, एंड ड्यू टू विच वी आर जस्ट फ्रीली बीइंग इन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन. सो इससे हम बहुत से लोग गेट अबाउट इन कॉन्टैक्ट विद द STD सफरिंग पर्सन. सो इट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि ज़्यादा केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, राइट? अब जो कुछ STDs होते हैं जैसे कि हेपेटाइटिस V एंड HIV वायरस सफरिंग STDs जो होती हैं, वो उनके कुछ हम एक सर्टेन पॉइंट्स हैं, राइट, जिसको हम देखें तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि सिर्फ सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट से नहीं, बट कुछ अदर पॉइंट्स भी हैं जिनके थ्रू हेपेटाइटिस V एंड HIV वायरस के जो होते हैं STDs वो फैलते हैं, राइट? सो पहला ये है कि अगर हम किसी पर्सन को कंटेमिनेटेड सिरिंज नीडल या फिर सर्जिकल इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं जो कि प्रीवियसली किसी इन्फेक्टेड टू से STD इन्फेक्टेड पर्सन बेसिकली, राइट? सो यहाँ पे कहने का, अगर कोई हेल्दी पर्सन है उसको किसी STD सफरिंग पर्सन की यूज़ की हुई नीडल्स या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट शेयर किए जाते हैं तो द हेल्दी पर्सन विल ऑल्सो गेट बी अफेक्टेड, राइट? क्योंकि अगर सिरिंज है सो इट विल गेट इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ब्लड, एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो दे आर यूज फॉर कटिंग एंड स्विंग द बॉडी. सो इसका मतलब है कि ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि हमें इन चीज़ों में भी केयर करनी चाहिए. ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, राइट? जैसे मैंने अभी बताया कि जो फीमेल्स होती हैं उनमें सिम्टम्स नहीं होते हैं, राइट?
and if a person suffering from STD is donating her blood for someone needy, so that needy person, or you can say that person will be getting suffered from STD, right? So इसका मतलब ये है कि बेसिकली ये हम फीमेल्स को असाइन कर सकते हैं फैक्टर कि फीमेल्स में हमें सिम्टम नहीं दिखते हैं, सो दे आर नॉट अवेयर कि वो लोग STD से सफ़र कर रही हैं। सो अगर वो ब्लड डोनेट कर रही हैं और जिस पर्सन को नीड है उस ब्लड की वो उसे यूज़ कर रहा है, सो दैट पर्सन विल ऑल्सो बी गेट सफर्ड, राइट। अगर कोई मदर हमारी STD लाइक हेपेटाइटिस बी या HIV से सफ़र कर रही है एंड शी इज़ हैविंग अ फीटस इन हर वोम, तो उस फीटस में भी चांसेस हैं कि वो HIV एंड हेपेटाइटिस बी का वायरस ट्रांसफ़र हो जाएगा, उससे भी STD हो सकती है, राइट। अब एक फैक्टर यहाँ पे आया कि जैसे मैंने बताया कि डिटेक्शन नहीं हो पाता है फीमेल्स में, या इट्स नॉट स्पेशली इन फीमेल्स, मेल्स में भी बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं। सो इनका एक पर्टिकुलर रीज़न भी हो सकता है, राइट। सो बेसिकली फर्स्ट पॉइंट यही होगा कि क्या क्यों नहीं डिटेक्ट हो पाते हैं। ये रीज़न ये है कि बहुत कम सिम्टम्स होते हैं या फिर एब्सेंट होते हैं सिम्टम्स अर्ली स्टेज में, तो फिर जब वो एकदम सीरियस कंडीशन में हो जाता है तब उनका डिटेक्शन हो पाता है, राइट। सेकेंड रीज़न हो सकता है कि सोशल स्टिग्मा। सोशल स्टिग्मा मीन्स बेसिकली कि जिसको अगर पता चल जाता है सोसाइटी में कि अगर सामने वाला पर्सन STD से सफ़र करता है तो ही इज़ जस्ट नेग्लेक्टेड फ्रॉम द सोसाइटी, उसे सोसाइटी से एकदम नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। सो दिस इज़ व्हाट एक्चुअली द रीज़न इज़ अबाउट कि लोग STDs के बारे में बात करना नहीं पसंद। ओके, सो बेसिकली लेट डिटेक्शन होने की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाती हैं। अब वो कॉम्प्लिकेशंस पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ हो सकती हैं, PDI। फीमेल्स में अगर लेट डिटेक्शन हुआ तो एबॉर्शंस हो सकते हैं, ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हो सकती हैं, इनफर्टिलिटी हो सकती है, इवन कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। सो दीज आर वेरी सैड कॉम्प्लिकेशंस कि किसी के लाइफ को भी ये अफेक्ट कर सकती हैं। सो इनको अगर प्रिवेंट करना है सो बेसिकली यही हो सकता है कि we each and every person from the society should create an awareness regarding STDs because कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। सो यही हो सकता है कि हमें सोसाइटी में बात करनी चाहिए, राइट, क्योंकि अगर हम सोसाइटी में बात नहीं करेंगे एंड वन पर्सन हैज़ टू टेक द इनिशिएटिव, राइट, बिकॉज if we want to change the world we have to start from ourselves. So I would suggest you just start taking a step forward and you'll see the crowd behind you. क्योंकि लोगों में अभी भी ये एक अंदर से गिल्ट रहता है या फिर यू कैन से एक अंदर से डर बना रहता है कि हाउ द पीपल इन द सोसाइटी विल सी अस, राइट। सो आई वुड सजेस्ट कि हमें अपने अपने एरिया में, हमें अपने अपने अराउंडिंग्स में, जो सराउंडिंग्स में हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए। अब टॉपिक कोई भी हो सकता है, सिर्फ STDs नहीं, हम कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, जैसे फीमेल फीटिसाइड हो गया, रेप्स हो गए। सो दीज आर द थिंग्स विच आर टू बी स्टॉप्ड इन द मेकिंग द वर्ल्ड फॉरवर्ड, राइट। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एक पर्सन को इनिशिएटिव लेना ही पड़ता है, तो हम क्यों इंतज़ार करें कि सामने वाला इनिशिएटिव ले, हम भी तो वो चीज़ कर सकते हैं। इफ़ वी आर फीलिंग दैट द पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस इज कैपेबल टू टेक अ इनिशिएटिव, देन व्हाई आर वी नॉट? वी आर एक्चुअली इनिशिएटिव, वी आर seeing the people we are appreciating, but still there is a fear inside us that we are not taking the initiative. So just take one step and you'll see the whole crowd behind you, right? So now we will see कि हम STDs को prevent कैसे कर सकते हैं, right? So we should not be panic actually. अगर हम STDs से सफ़र भी कर रहे हैं या फिर नहीं भी हमें, so we have to just take the simple methods. We have to just follow simple methods, preventive measures, जिससे कि हम अवेयर हैं जनरल लाइफ में, राइट।
सो पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होगा, वी शुड अवॉइड सेक्स विद अननोन पर्सन, राइट। अगर हम सामने वाले पर्सन को नहीं जान रहे हैं, सो हाउ वी विल बी नोइंग अबाउट हिज हेल्थ हिस्ट्री, हिज डिजीज हिस्ट्री के बारे में हमें उसके नहीं पता होगा। सो द फर्स्ट मेजर इज बेसिकली दैट वी शुड अवॉइड बीइंग इन सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विद द अननोन पर्सन, ओके। And another thing also to be added here is to avoid sexual contact with the multiple partners, यानी कि हमें multiple partners से sex avoid करना चाहिए। इसका भी reason यही है कि we will not be knowing about the health history of the person, so it's a very high chances कि हमें STDs transfer हो सकते हैं, right? Second and very simple preventive measure is to just use the condom during the sexual intercourse, right? So this is the basic thing, and now these past few years the use of condoms during sexual contact have also increased. People are getting aware of using these things basically, right? So just use of condom during sexual contact can avoid the STDs, right? Using the sterile syringe and needles. Sterile means one time use only. So basically one time use syringe are much better than using a single syringe for a multiple persons, right? And the last point is the awareness. Awareness is one of the most important factor for preserving anything or preventing anything basically, right? क्योंकि अगर हम अवेयर नहीं हैं, if we say about you about a about age group, right? If we say what is age group, अगर मैं आपको age group के बारे में नहीं बता रही हूँ, मान लो हम कहते हैं अनसेफ अबॉर्शन, अगर मैं आपको अनसेफ अबॉर्शन के बारे में अवेयर नहीं करूँगी, सो यू विल नॉट बी गेटिंग टू नो अबाउट दिस टर्म। क्योंकि अगर आपने इस टर्म के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, सो देयर इज अ वेरी लेस चांसेस ऑफ गेटिंग अवेयर, राइट? सो अवेयरनेस इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड अगर आपको ये पता चल चुका है कि आप सेक्सुअल कॉन्टैक्ट कर चुके हो ऐसे पर्सन के साथ जो कि STD से सफ़र कर रहा है, तो जो जस्ट डोंट गेट पैनिक्ड, राइट? जस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर regarding the disease and just you follow the simple measures from getting rid of the disease. So these were the simple preservative methods जो कि हम follow कर सकते हैं. I don't think any complex method was there, right? Because हम अपनी safety खुद कर सकते हैं. No one is going to come and just making you safer from anything, right? So this is what about actually the STDs are, okay? So just we have to see the simple measures. हम अपनी डेली लाइफ में हमें सिंपल मेजर फॉलो करना है जिससे कि हम इन सब चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं. So guys, it was all about today's video. Thank you for watching. Please do like, share and subscribe to my channel for more such interesting videos. Till then, bye bye, take care.